Welcome friends, we are once again in Sanjay Agarwal Maths classes. So this is 12th Maths. Topic we are doing or the chapter we are doing is vectors. We have already gone through 12 episodes. Usually one episode is of half an hour. Rarely it may go to 40-50 minutes also. So we had done basics of the vectors. Based on that we did more than 20 questions. That was in a form of an assignment called practice paper 1, which was given as a link in the description from episode number 6 onwards. So episode number 6, 8 and 9 and 10 we did numericals. Episode number 11 was the theory on dot product of two vectors. And episode number 12 was the numericals we were doing in the class, and that assignment was called practice paper 2, and that assignment is given as a link in the description below. So this is how that assignment is. You can have a look at it. Okay. And it has got 22 questions. So in episode number 12, which is prior to this assignment, this episode we did 7 questions. Now without wasting any time, we'll start with question number 8. 7 we have already done in the last class. तो बच्चों हम 12वीं क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं. चैप्टर का नाम है वेक्टर्स और इसके अंदर हर लेक्चर को बोला जा रहा है एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट. तो अब ये आप जो इस समय देख रहे हैं ये एपिसोड नंबर 13 है. इससे पहले वाले एपिसोड्स में पहले से 10 नंबर तक के एपिसोड में हमने वेक्टर्स का बेसिक्स किया था और उसमें एपिसोड नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 हो गए 5 एपिसोड. उसके अंदर हमने करीब 22 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके उस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाया था. और वो सारे न्यूमेरिकल्स पुराने बोर्ड पेपर्स में से लिए हुए हैं और कुछ एनसीईआरटी बुक्स. उसके बाद एपिसोड नंबर 11 में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा, जो कि 2 टाइप का होता है. एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. तो एपिसोड नंबर 11 में पूरा हमने थ्योरी पढ़ी है डॉट प्रोडक्ट की, और एपिसोड नंबर 12 में हम अब असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं. इस असाइनमेंट में 22 क्वेश्चंस हैं. इस टाइप का ये असाइनमेंट है और ये नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है. उसके हम पहले 7 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. अब हम ये 8वां कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. आपको दिया गया है एक ट्रायंगल और उसमें एंगल ए निकालना है. तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये वाला एंगल निकालना है यहाँ लिखने के बजाय. और ये बी और ये सी. और आपको दिया क्या गया है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 3, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4 एंड 1. एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0 एंड 2. ऑलराइट, यू हैव टू फाइंड कॉस ऑफ एंगल ए. आपको कॉस ए निकालना है. ऑलराइट, सो इसको हम वेक्टर्स की मदद से करेंगे. हम पहले बनाएंगे वेक्टर ए बी और फिर बनाएंगे वेक्टर ए सी. दोनों वेक्टर, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों वेक्टर्स को निकलना है ऐसे. ये नहीं कि एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. या तो दोनों निकलने चाहिए या दोनों उसमें अंदर आने चाहिए. एक जा रहा है और एक आ रहा है ऐसा नहीं. So let me repeat it in English. So when you are finding the cos of angle A, you do construct angle vector AB and vector AC. Angle between vectors, when you are finding, you have to make sure that both the vectors are either leaving the point of intersection or they are arriving. It should not be one is leaving and one is arriving. Then you will not get the angle between the vectors. Alright. So it is in your hands. How do you want to construct the vector? So A to B. So vector AB हम अब निकालेंगे. This we have done n number of times. x2 minus x1, 3 minus 1 I cap, -4 minus 3 j cap, and 1 plus 2 k cap. Alright. So how will you find vector AB? x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. So 3 minus 1 हो गया आपका 2i, -4 minus 3 हो गया -7j, और 1 plus 2 हो गया प्लस 3k. ऐसे ही you are going to make vector AC. So what will be vector AC?
C को पहले लेना है, -1 -1 I cap, then 0 -3 K cap, 0 -3 है ना, and 2 + 2 not K cap, J cap plus 2 + 2 K. So x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 J cap plus z2 minus, ये फिर प्लस हो जाएगा. So अभी क्या बना, -2 I cap minus 3 J cap plus 4 K. अब ये बनने के बाद ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कैसे करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों वेक्टर्स का. तो व्हाट विल बी वेक्टर AB डॉट वेक्टर AC, वेक्टर AB डॉट वेक्टर AC विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो अब इसका मतलब हमें AB डॉट ACB निकालना है और वो भी हम कर चुके हैं. जैसे पिछले एपिसोड में बोल रहे थे, अब तो हम इसको कर करके एक तरीके से चट गए हैं. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव ऑलरेडी फाउंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे के. आईज के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जेएस के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, केएस के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. शुरू में अच्छा लगता है, 2 4 5 6 क्वेश्चन में ठीक लगता है, उसके बाद बोरिंग लगने लगता है. कितनी बारी हम करेंगे. AB डॉट AC, so 2 into -2. I hope all the students are also now expert in finding the dot product of the two vectors, -7 and -3 and 3 and 4. Okay, so ये कितना हो गया, -4, 7 3s are 21, 4 3s are 12, -4, 7 3s are 21, 4 3s are 12. अब ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 इसमें आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 29. देखो ना, 12 में से 4 गया 8 इसके नीचे लिखो, ये 29 हो गया. अब मैग्नीट्यूड ऑफ AB कितना होगा, ये भी अब आपको निकाल के आप एक्सपर्ट हो गए. आप I, J और K के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उनका स्क्वायर रूट लेंगे. इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ दीज नंबर्स. वेयर इज AB, हियर इज 2 -7 और 3 का स्क्वायर करेंगे. 2 -7 और 3 का स्क्वायर. जो बच्चे अभी पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप पिछले वाली क्लासेस को वॉच करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत समझ में आएंगी. और ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप ये सारी क्लासेस को रेगुलरली वॉच करेंगे सीरियल वाइज, आपका वेक्टर्स एकदम क्लियर हो जाएगा. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि जो मैंने बोला वो सच है या सच नहीं है. और वेक्टर्स करेंगे, मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके बाद किसी और किताब की और यू नीड टू गो थ्रू एनी अदर बुक. आई एम ट्राइंग टू मेक इट very simple. As I told you in previous episodes, I have been teaching maths for last 32 years now. तो डेली में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ फिजिकली, ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यूट्यूब पे. ऑनलाइन क्लासेस तो चलती हैं लेकिन यूट्यूब पे लेक्चर्स आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑल राइट, 2 का स्क्वायर 4, इसका 49 और इसका 9. अब इसको ऐड करना पड़ेगा. 49 में पहले आप 10 ऐड करेंगे, 59 हो जाएगा. 59 में आपको 10 तो ऐड नहीं करा था, एक कम कर दें तो ये 58 हो जाएगा. 58 में 4 ऐड करेंगे तो ये 62 हो जाएगा. ऑलराइट, या पहले इसमें से 1 ऐड कर दो, 50 हो गया, फिर 59 हो गया, फिर 3 ऐड कर दो, 62 हो गया. आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC में यहाँ निकाल देता हूँ. अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेके कोफिशिएंट्स ले लो I, J और K के, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो. तो क्या होगा, ये यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करेंगे. -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर. तो जिन स्टूडेंट्स का वेक्टर्स ऑलरेडी कवर हो गया है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों ने शायद वेक्टर स्कूल में भी कर लिया होगा और अपने ट्यूशन सेंटर में भी कर लिया होगा. अगर आप इनके थ्रू आप जाएंगे तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं. तो एक बार अभी देख सकते हैं, और जब बोर्ड का एग्जाम आएगा उससे पहले रिवाइज कर लीजिए. थ्योरी पे मैंने बहुत एम्फेसिस दी है. सो व्हेन यू गो थ्रू द थ्योरी एंड डू द न्यूमेरिकल्स व्हिच आई एम डूइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू आर ऑल सेट फॉर द बोर्ड एग्जाम. उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, काफ़ी है इतना. सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16. 4 + 9 + 16. अब इसको करेंगे 20 और 9 ऐड करेंगे √29.
सो अब आपके सारे मसाले तैयार हो गए हैं। फॉर्मूले के अंदर जो भी आपको चाहिए, ए बी डॉट ए सी भी आपका रेडी हो गया, वो ये रहा 29। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी भी तैयार हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी भी तैयार हो गया। बस अब ये वैल्यूज उसमें डालिए और आपका क्वेश्चन खत्म। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो जो बच्चे लिख रहे हैं और फिर मैं आपको जैसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं पहले मिटा दे रहा हूँ आपके लिखने से पहले, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको साथ साथ लिखना भी पसंद करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको रिटेन नहीं होंगी। तो मैथ्स सुनना तो है, समझना भी है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट उसको लिखना भी है, और शायद एक नहीं मल्टीपल टाइम्स आपको लिखना चाहिए। सो यू मस्ट लिसन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक नोट्स ऑफ द थ्योरी एंड देन डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। सो डोंट बी शाय फ्रॉम राइटिंग। तो जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। तो ई बी डॉट ए सी की वैल्यू 29 थी, अब ये मैंने लिख लिया तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड था रूट ऑफ 62, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ से इसका काम हो गया। और जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं वो पॉज करके लिख लेंगे। और वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड ये रहा रूट 29। ऑलराइट, और बचा क्या, कॉस ए। अब कॉस ए कितना होगा, 29 अपॉन रूट 62 इंटू रूट 29। अब ऊपर वाले 29 को आप लिख सकते हैं क्या, रूट 29 इंटू रूट 29? बोलिए, कैन यू राइट इट डाउन? कैन यू, व्हाट इज रूट 5 इंटू रूट 5? सो एवरीबडी नोज इट इज 5, डोंट यू? तो आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं। तो 5 को आप लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5, सिमिलरली रूट 29 को लिख सकते हैं रूट 29 इंटू रूट 29, ये कट जाएगा। अब इन दोनों के बीच में तो कोई बचेगा नहीं। सो दैट इज योर आंसर। यू डोंट हैव टू फाइंड एंगल ए, यू हैव टू फाइंड कॉस ऑफ एंगल ए। सो आपको इसको इन्वर्स करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका आंसर होगा। सो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। वेक्टर्स एक थोड़ा आसान चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स का। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है मैथ्स का, सोचिए, जो मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और बहुत बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसमें तो एकदम हमारी जान ही निकल जाती है उसको करते करते। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके लिख लीजिए और उसके बाद वापस प्ले कर लीजिए इसको। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो हो रहा है धीरे धीरे। आई एम ट्राइंग टू पुट ए डिजिटल ब्लैक बोर्ड on this, but it's very expensive. Let us see. So now let's do next question. All right. अब जो क्वेश्चन नंबर 9 is also there. यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट है ए पे, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक दी गई है पी, वेक्टर P 2i माइनस 5j प्लस 6k, और इस पे एक और फोर्स लग रही है जिसको दिया गया है वेक्टर Q माइनस i प्लस 2j माइनस k। तो जो असाइनमेंट डाउनलोड करने के उसमें नहीं है, दे डोंट हैव दैट रिसोर्सेज, तो आपको मैं क्वेश्चन फिर भी समझा रहा हूँ। ये दो फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट ए पे उस पर लग रही हैं, और उसके कारण ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके धक्का मार मार के यहाँ आ गया, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपको वर्क डन निकालना है। तो आई कैन रीड द क्वेश्चन फॉर यू। कांस्टेंट फोर्सेस P, कांस्टेंट फोर्सेस P इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस 6k एंड Q इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j माइनस k एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ए पॉइंट A whose coordinates are given. Find the work done when the particle is displaced from A to B and the coordinates of B are also given. Now what is the displacement vector? AB will be your displacement vector. And how do you make it? x2 minus x1, 1 plus 3, ये कहाँ से आया? यहाँ से। इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर माइनस 3 प्लस 2। What will be vector AB? 2i plus 4j माइनस k, बन गया वेक्टर AB। ओके, अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। मैंने ये बात 2-3 बारी आपको पहले भी बोली है, क्योंकि मेरे सामने ये एक वाकया, एक एपिसोड हुआ था बहुत साल पहले। मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स।
बहुत सारे बच्चे उसको नहीं कर पाए क्योंकि उनको सम ऑफ द वेक्टर्स तो रिकॉल था बट वो भूल गए कि ये रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स का भी मतलब सेम होता है सम ऑफ द टू वेक्टर्स। सो लेट एफ, आई एम यूजिंग ए न्यू सिंबल बी p plus q. So how do you add two vectors when they are expressed in terms of I, J, K? ना आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन चाहिए ना आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन चाहिए, आप सिंपली उनको ऐड कर देंगे ऑन ए नेचुरल वे। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2i minus i will be i, -5 plus 2 minus 3j plus 5, ये हो गया। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? इट्स ए स्केलर क्वांटिटी f डॉट ए बी। मैं इसके ऊपर और न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ, ये बोर्ड में बहुत रेयर है, कोई पूछता नहीं है इसको एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ बायस हो जाता है। जिन बच्चों के पास साइंस है उनको ये क्वेश्चन आसान लगता है क्योंकि उन्होंने 11th में किया होता है। जिनके पास फिजिक्स नहीं होती है उनको ये क्वेश्चन टफ लगता है, तो ये थोड़ा बायस हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इसको अवॉइड ही करते हैं जिससे कि सबके लिए एक जैसे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट 1, फिर इसका कहाँ है 2, फिर जे का कोफिशिएंट है -3। अब इसको तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, कर करके हम सबको याद हो गया है, और 5 एंड -1। तो क्या फॉर्मूला होता है, फिर भी मन मानता नहीं, मैं बोल देता हूँ। You multiply the coefficient of i's, then add, multiply the coefficient of j and add, then multiply the coefficient of k. -3 plus 2 -1 -1। बस अब इसको आप इवेल्युएट कर लीजिए, ये 2 हो गया, -12 -5, 2 -12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 -5। ये देखो ना 2 -12 -10 हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ गया, -15। जोश में आके जूल मत लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को वर्क डन की यूनिट पता होती है, यूनिट्स तो यहाँ है ही नहीं ना हमें फोर्स की यूनिट पता है, ना हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की यूनिट पता है। ऑल राइट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14 दे आर ऑल प्रूविंग क्वेश्चंस, सो दे आर मोर कॉन्सेप्चुअल। तो आने वाले अगले 4 या 5 क्वेश्चन आसान है क्योंकि उसमें कोई नंबर्स नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उनको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये एकदम प्लेइंग विद नंबर्स था और रिपीटिटिव हो गया। बहुत देर से हम एक ही जैसे कॉन्सेप्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब थोड़ी सी क्लास में इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए इधर, अब नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपको a + b वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड दिया है, और a - b वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड दिया है, और दोनों हैं आपस में इक्वल। You have to prove the angle between them, angle between what? Between A and B. Vector A and B is 90 degrees. तो अब इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आएगा। 1 to 9 तो ऑलमोस्ट एक जैसे रिपीटेटिव हो गए थे, ये एक आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ रहा है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। Magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b. Find the angle between the vectors or prove the angle between the vectors is 90 degrees. आपको दो वेक्टर दिए हैं a और b, उनका सम, उसका मैग्नीट्यूड, फिर a और b और उसका डिफरेंस a माइनस b और उसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। आपको करना क्या है, आपको a और b के बीच में एंगल 90 डिग्रीज प्रूव करना है। आप इसको ना दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अब काफ़ी क्लासेस हो गई हैं। आपको एक बहुत ही फेमस लाइन मैंने बोली थी आपको, और हमेशा मैं उसको एक रेक्टेंगल में डाल देता हूं। ओके, स्क्वायर ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स, ये लो जी रेक्टेंगल छोटा पड़ गया, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये लाइन तो आप कम से कम 15-20 बार यूज करेंगे। इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। तो आप इसको फर्दर क्या करेंगे, अभी मैग्नीट्यूड है ना, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। वेक्टर के डोमेन में, वेक्टर की दुनिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्केलर में नहीं है। अब इसका आपके पास फॉर्मूला हमने किया था ऑलरेडी।
थ्योरी में किया था एपिसोड नंबर 11 में आप देखेंगे, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी की थी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और जो एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ना उससे बहुत सिमिलर है। पहले वेक्टर का स्क्वायर करिए प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर करिए, ट्वाइस ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट लिखिए। तो जो आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला नहीं होता था एलजेब्रा का, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बस अब इसमें एक डॉट आता है। और इसका फॉर्मूला तो अब आप समझ ही गए होंगे, उसी स्टाइल से इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट। तो ये फॉर्मूले से आपको याद रखने। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। इस टर्म को आप इस साइड में लाएंगे तो 2a डॉट बी इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2a डॉट बी कितना होगा 4a डॉट बी। अब ये बन गया 0, 4 नीचे चला जाएगा तो a डॉट बी कितना हो जाएगा 0/4 विच एवरीबडी नोज इज 0। और ये है तो आपकी थ्योरी आ गई फिर से। If dot product of two non-zero vectors is 0, it implies vector A is perpendicular to vector B। तो मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा मज़ा आया, कुछ नई चीज़ हमने सीखी। और ये जो कुछ समय से ये वाला स्टेटमेंट यूज़ नहीं हुआ था, अब ये बहुत बारी यूज़ होगा। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर, या स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो गिवन स्टेटमेंट को स्क्वायर किया, फिर उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला लगाया, जो कुछ कट गया, रीअरेंज किया, 0 आया। और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सो दोज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स। ओके, सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ नॉट, प्लीज राइट इन कमेंट्स, आई कैन रीडू सम क्वेश्चंस आल्सो। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। सो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पीपी मीन्स प्रैक्टिस पेपर 2। दिस इज एपिसोड नंबर 13। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे लेक्चर्स को ना ठीक से एक सीरीज में अरेंज करते जाएं, नहीं तो बाद में पता नहीं लगेगा कि कौन सा एपिसोड कहाँ गया। एपिसोड या लेक्चर जो भी है, अब मैंने इसको एपिसोड बोलना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो भी हम पढ़ते हैं ना उसको ठीक से लिखना है और उसको ठीक से अरेंज करके रखना है, नहीं तो सब इधर उधर खो जाएगा कुछ समय के बाद। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले से 1 2 3 4 5 वह थ्योरी ऑन वेक्टर्स, 6 7 8 9 10 वर द न्यूमेरिकल्स, 11 वॉज द थ्योरी ऑन डॉट प्रोडक्ट, 12 वॉज न्यूमेरिकल्स, 13 अभी प्रोग्रेस में है, ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसको रब कर दिया जाए। नाउ वील डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। You should all of you first do theory properly and then start doing the numericals, and before that of course you must remember the formula. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, ये ना 11 12 13 ये सब प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है। आपको पता है दिया गया है a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, दिस इज गिवन टू यू। ओके, इफ यू हैव ए प्रिंट आउट यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ। आपको दिया गया है a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी। व्हाट इज गिवन टू यू? a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी। व्हाट यू हैव टू शो? यू हैव टू शो 3 थिंग्स। आपको शो करना है या तो a नल वेक्टर है और b c के बराबर है, वेक्टर b c के बराबर है, या वेक्टर a परपेंडिकुलर है b माइनस सी। इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम और फॉर योर स्कूल एग्जाम ऑल्सो। लॉट ऑफ टीचर्स में लाइक टू गिव दिस इन द एग्जाम। एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, सोल्यूशन भी साइज में छोटा है। ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बढ़िया होते हैं जिनका सोल्यूशन छोटा हो, कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, और क्वेश्चन ऐसा भी ना हो कि एकदम गोलगप्पा हो, आपने देखा और फटाक से खा लिया। तो कुछ तो दिमाग लगाएं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। सो दिस इज ए परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम बिकॉज इट्स नाइदर वेरी ईजी नॉट टफ, इट्स ए मीडियम लेवल क्वेश्चन एंड डज यूज सम इनोवेशंस। सी, सबसे पहले इसको आप लेफ्ट में लेके आएंगे। किसको लेफ्ट में लेके आएंगे? शिफ्ट दिस टर्म ऑन दिस साइड, इट विल बिकम नेगेटिव, और यहाँ पे 0 आएगा, 0 एरो नहीं आएगा, इट्स नॉट ए वेक्टर। अब इसमें ना a डॉट आप कॉमन ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिवर्स में लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा a डॉट बी, फिर एक माइनस आएगा, फिर a डॉट सी। अब आपके पास क्या है? आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है। सो मेजर इन्फ्लुएंस तो यही होती है, दे आर एट राइट एंगल। सो ये तो हो ही गया आपका, बट दो इन्फ्लुएंसेस और हो सकती हैं। अगर आपका दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट वेक्टर इज 0
or the second vector not 0, I'll say the first vector is a null vector और second vector is a null vector और they are at right angle. So यहाँ से ना 3 inferences आपके बनेंगे. ये देखिए, either A is a null vector और B minus C is a null vector, और इसको फर्दर आप ले जाएंगे तो इससे क्या बनेगा, वेक्टर B is equal to वेक्टर C और the first vector is at right angles to the second vector. तो हो गए आपके तीनों प्रूफ. देखो कितना अच्छा. और प्रेजेंटेशन देखिए, ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. अगर राइटिंग तो इम्प्रूव नहीं हो सकती तो आप कम से कम स्पेस तो ज़्यादा दे सकते हैं. थोड़ा खुला खुला लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए. जो टीचर चेक कर रहे हैं उनकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाइए. अब ये एक थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया ऐसे. तो ए इज ए फर्स्ट वेक्टर नल वेक्टर होगा, दूसरा वाला होगा, या दोनों आपस में रेक्टेंगल 90 डिग्रीज में आएंगे. So if A dot B is 0, it implies either A is a null vector or B is a null vector or they are at right angle. So आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और मेरी भी राइटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, अच्छी हो रही है. अब मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूँ कि आपको कैरेक्टर्स अच्छे दिखें, और देखते हैं डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे कैसे बनेगा हिसाब. सो लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी हमने किया, और अगला वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13. इसमें दिया हुआ है कि एक वेक्टर C है विच इज परपेंडिकुलर टू A. ऑल्सो ये वेक्टर B के परपेंडिकुलर है. सो व्हाट इज गिवन टू यू, वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, ऑल्सो वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B. हो गया. और आपको क्या प्रूव करना है, C इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A प्लस B. आपको क्या प्रूव करना है, C is perpendicular to A plus B. तो ये एकदम नॉर्मल रन ऑफ द मिल क्वेश्चंस नहीं है. ये फटाफट फॉर्मूला लगाया, IJK के कोफिशिएंट के साथ प्ले किया और मेरा आंसर आ गया. इनमें कुछ तो दिमाग लगता है. तो अब इसमें देखते हैं. अब देखिए, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन. अगर ये दोनों 90 डिग्रीज पे हैं तो कैन आई से देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0? ऑफ कोर्स. और क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? ठीक हो गया. अब ऐसा करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं. तो C डॉट A प्लस C डॉट B क्या होगा, 0 होगा. 0 प्लस 0 0 होगा. आप इसमें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, C डॉट आप कॉमन ले लीजिए, व्हाट विल गेट A प्लस B. और यहाँ पे ना हम इज्यूम करेंगे दैट A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर नॉन जीरो और नॉन नल वेक्टर्स. क्वेश्चन में लिखना चाहिए ABC या नॉन जीरो वेक्टर, लेकिन नहीं भी लिखा है तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो नॉन जीरो वेक्टर्स है. ठीक है. तो अब इससे आपके मेजर इन्फ्लुएंस वही आएगा. पहला ये नल वेक्टर या ये तो हम छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑथर ने पूछा भी नहीं है, उसने तो बस ये पूछा है प्रूव C इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B. तो बस ये आपका इन्फ्लुएंस आ गया. इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन वन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर. सो दैट फिनिशेज योर क्वेश्चन नंबर 13 also. Now let's do question number 14. Now that's a little big one and it has been asked in the board exam twice. So ये तो आसान था. 14 उतना आसान अभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको ये दिया गया है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, इन तीनों का सम नल वेक्टर है. And you have to prove angle theta between B and C. Angle theta between vector B and vector C is given by cos theta is equal to square of vector A minus square of vector B minus square of vector C divided by twice of वेक्टर B एंड वेक्टर C. सो दिस लुक्स वेरी इंटिमिडेटिंग. देख के इसको डर सा लगता है. काफ़ी बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया है. आपको ये दिया हुआ है A प्लस B प्लस C इज 0, नॉट 0, इट इज़ ए नल वेक्टर. सम ऑफ द वेक्टर्स कैन नॉट बी ए स्केलर, इट हैज़ टू बी ए वेक्टर. सो A प्लस B प्लस C आपको नल वेक्टर दिया है. B एंड C के बीच के एंगल को थीटा माना और ये हमें प्रूव करना है. So what is given to you? Sum of three vectors A, B, C is a null vector. Angle between vector B and C is given to be theta, and we have to prove cos theta is equal to this expression: square of A vector minus square of B vector minus square of C vector divided by twice of the product of the
magnitudes of vector B and C. Do you know what do you mean by this? If you say A plus B plus C is a null vector, do you know that? It means they represent the sides of the triangle taken in one specific order. I'll show you. ये देखिए, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C. ए के ऑपोजिट वाले को अगर आपको डायग्राम बनाना है तो कैपिटल ए लिखेंगे, इसके आप ऑपोजिट वाले को लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली 3 का पसंद किया जाता है. आप देखिए इनका सम, आप कहाँ से शुरू हुए? बी से शुरू हुए और यहाँ तक गए, फिर यहाँ से आप यहाँ तक गए, फिर यहाँ से आप यहाँ तक आए, तो जहाँ से चले थे वहीं आ गए. सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी? ऑब्वियसली 0. सो ये बन गया नल वेक्टर. दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. So you travel from B to C, then C to A, and then back to A to B. So you are back to B from where you started. The shortest distance between the starting and the finishing point is 0. So it's a null vector. अब आप क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे. आपको ये दिया है ना B और C वाला एंगल, तो आप B प्लस C को लेफ्ट में रखेंगे और इस A को उधर ले जाएंगे, तो ये 0 माइनस A करके ये बन जाएगा माइनस. अगर क्वेश्चन में इसमें ना अलग अलग कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, तो ए और बी को यहाँ रखना और सी को उधर ले जाना, तो वेक्टर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस सी. अगर ए और सी के बीच में एंगल दिया है तो फिर आप यहाँ लिखना ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी. तो किस वेक्टर को राइट में शिफ्ट करना है वो भी तो जरूरी है, इससे आपको पता लगेगा. ठीक है, अब दोनों तरफ आप फिर से स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे आप स्क्वायर कर सकते हैं. ऑलराइट, ये माइनस है ना तो अपने आप प्लस हो जाएगा. सो यू स्क्वायर्ड बोथ द साइड्स. अब आप वो फॉर्मूला लगाइए जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था. व्हाट इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर? वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, है ना. इसका स्क्वायर किया प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, और यहाँ आ जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द प्लस ट्वाइस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. अब आप इसको रीअरेंज करिए. अब देखिए आपके आंसर का शेप आने लग गई है. इनफैक्ट न्यूमरेटर तो आपका रेडी हो गया. ये देखिए, बस फिर तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ गया. सो द यू कीप b प्लस सी ऑन वन साइड, शिफ्ट a ऑन द अदर साइड, स्क्वायर बोथ द साइड्स, ओपन द ब्रैकेट्स यूजिंग द फॉर्मूला एंड रीअरेंज. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ b डॉट सी? मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जिसको सिंबल दिया गया है थीटा. ये रहा एंगल बिटवीन b एंड c इज थीटा. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई b प्लस c शुड बी केप्ट ऑन द लेफ्ट, क्योंकि आपको उनके बीच का एंगल दिया गया, और यहाँ पे आपका यही आएगा. अब ये दोनों या तीनों टर्म्स को आप इधर लेके जाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर. सो यू वर सक्सेसफुल इन प्रूविंग. तो ये क्वेश्चन शुरू में टफ है, एक बार ही करने के बाद ये टफ नहीं लगता. और सुनिए इसके अंदर बोर्ड में क्या किया था. उन्होंने इन सब की वैल्यूज दे दी, तीनों के मैग्नीट्यूड. पता है आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को फर्दर कैसे लिख सकते हैं आपको पता ही है ना. पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. तो व्हाट विल बी कॉस थीटा. अगर आप लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसकी जगह ना स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और फिर क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस. अब क्या किया उन्होंने, इनके नंबर्स दे दिए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए कोई नंबर दे दिया क्वेश्चन में, बी के लिए दे दिया, सी के लिए दे दिया. अब वो नंबर्स यहाँ डाल दीजिए तो आपका आंसर नंबर में आ जाएगा. ऐसा भी किया है, लेकिन उससे पहले इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपको दिया नहीं जाएगा. माई असाइनमेंट फेल ऑन द फ्लोर. सो ए प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर हो गया. ये आपका आंसर यहाँ आ गया. अगर ये नंबर्स में दिए हैं तो इसको हम यहाँ डाल देंगे, आपका आंसर कॉस थीटा कुछ आ जाएगा. सो दिस क्वेश्चन करने से पहले इट वॉज लुकिंग टफ, करने के बाद तो ये भी आसान हो गया. सो यू कैन राइट डाउन द सोल्यूशन, पॉज द वीडियो, आई विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और यू कैन वॉच दीज वीडियोज ट्वाइस इफ यू आर रियली सीरियस. पहली बारी में आप इनको समझिए, अगली बारी में इनको करिए. अब हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एनसीईआरटी बुक में 3 बारी दिया गया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको लिखा है
एक्सप्रेस ए वेक्टर एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं अपनी मर्जी से ऐसे लिखता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू a1 प्लस a2। क्या बोला है? एक्सप्रेस ए वेक्टर a एज सम ऑफ टू वेक्टर्स where one part is parallel to B, another part is perpendicular to B. So where A1 is parallel to B and the other part A2 is perpendicular to B. So this is the question. And आपको ना वेक्टर A और वेक्टर B भी दे दिए गए हैं, 5i माइनस 2j प्लस 5k। तो जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो अभी इससे भी उनका काम चल सकता है। Okay, so let me repeat the question for you. I have written it for you. You are given vector A and vector B in terms of I, J and K. You have to decompose vector A. इसकी जगह ना एक क्वेश्चन में उन्होंने वर्ड यूज़ किया decompose vector A. So जब ऐसे बोलेंगे तो मतलब वही है, write it as sum of two vectors. So decompose vector A into two parts where one part is parallel to B. So I have said let A1 be parallel to B and the other part say A2 is perpendicular to B. It's a mighty important question for the board exam. बहुत ज़्यादा important question है ये, याद रखिएगा मेरी बात। अब देखिए, अब इसको हम करते हैं, सिंस वेक्टर A1 इज पैरेलल टू वेक्टर B, ये ऑथर ने गिवन है। आपको याद है वो ASC गोल्डन रूल आपको लिख पाया गया था, एपिसोड नंबर 3 में शायद था। इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, व्हाट डज इट इम्प्लाई? वन ऑफ द वेक्टर्स इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ B। इसको मैंने ऐसे प्यार से नाम दे दिया था ASC गोल्डन रूल, सो दैट वी कैन रिकॉल इट अगेन। सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। सो देयरफॉर आई विल राइट A1 वेक्टर एज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। अब आपको B की वैल्यू दी है, ये रही 3i प्लस k। आप इसके ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k। आपका A1 तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर अभी लैम्डा मिसिंग है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 1। ऑलराइट, अब हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह ये लिखिए आप 5i, कितना है बच्चों बताओ, माइनस 2j प्लस 5। ओके, तो a की जगह आपने क्या लिखा, 5i माइनस 2j प्लस 5k। A1 अभी अभी पकाया है हमने, ये रखा है, तो इसके A1 की जगह आप ये लिख दीजिए 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा के। ब्रैकेट बनाना है बना लीजिए, यहाँ पे नहीं बनाना है मत बनाइए, और प्लस A2। तो मैंने किया क्या है, इस स्टेटमेंट को 1 मान के इसमें A की जगह ये लिख दिया, फिर इक्वल टू लिखा, फिर A1 की जगह जो अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है वो लिख दिया, प्लस A2। अब इसको आप रीअरेंज करिए तो व्हाट विल बी A2, 5i माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j प्लस 5k माइनस लैम्डा k। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों टर्म्स को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आप लाइक टर्म्स को क्लब कर लीजिए, 5 माइनस 3 लैम्डा तो मैं लिख नहीं सकता, क्या होता है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा कॉमन लेके, माइनस 2j ऐसे ही रहेगा, इसको भी मेरे को फिर ऐसे लिखना पड़ेगा k कॉमन लेके। हो गया ये, ओके। लेकिन अब मेरा A1 भी आ गया, ये मैं दोबारा ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। मेरा A2 भी आ गया, लेकिन वो मुसीबत तो वहीं बैठी है, हाउ डू आई फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बिकॉज टिल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा A1 एंड A2 आंसर विल नॉट बी कंप्लीट। आपको लगता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक यूज़ नहीं हुई है, क्वेश्चन में दी है? इतना तो मैं मिटा देता हूँ, इसकी तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन अभी तक कहाँ यूज़ हुई है, ये इन्फॉर्मेशन से आपका लैम्डा निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, सिंस A2 इज परपेंडिकुलर टू B, डज इट इम्प्लाई दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0? ऑफ कोर्स। और डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे, ब्रैकेट्स बनाते हैं। अब देख रहे हैं, मैं पहला वाला ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है ना वो थोड़ा बड़ा है, 5 माइनस 3 लैम्डा। अगर इतना मैं बनाता तो इसमें 5 माइनस 3 लैम्डा फिट ही नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या है, -2, वो यहाँ आएगा, ये मैंने देख लिया था कि इतना बड़ा नहीं बनाया। और तीसरा है 5 माइनस लैम्डा। और क्या है, b के कोफिशिएंट ये है, i का कोफिशिएंट क्या है 3, j है नहीं तो उसका कोफिशिएंट आप 0 लेंगे, और k का कोफिशिएंट है 1।
फॉर्मूला आपको पता ही है, यू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स ऑफ आईज देन जेईज एंड देन केईज एंड ऐड दैम। तो अब ये इक्वल टू 0 तो मैंने लिखा ही नहीं, हो गया बस। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन। चलो जी ब्रैकेट खोलो, 5 3 15, 3 3 9, माइनस ऐसे ही रहेगा, ये तो 0 हो गया आपका, -2 × 0 और ये 5 माइनस लैम्डा। ओके, अब 15 + 5 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। चलिए आपका काफ़ी हद तक अब आंसर तैयार है। अब ये लैम्डा की वैल्यूज वापस A1 और E2 में डालनी है, अभी आंसर फिनिश नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो अब हम क्या करें, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आई नीड सम स्पेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नहीं लिख पा रहे हैं वो अभी सुनेंगे, समझेंगे, फिर से पॉज करके लिख लेंगे। अब और ये हो, मैंने तो A1 मिटा दिया। सो व्हाट वाज A1? ओके, अब सिंस A1 मैं बना लेता हूँ फिर से, क्योंकि मेरे को पता है A1 इज पैरेलल टू B, देयरफॉर A1 इज लैम्डा टाइम्स B। तो A1 था 3 लैम्डा I प्लस लैम्डा K। ऑलराइट, अब इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। 3 लैम्डा की वैल्यू क्या है 2I + 2K। तो ये कितना हो गया आपका 6I + 2K। अब की बार मैं ये गलती नहीं करूँगा, A2 नहीं मिटाऊंगा। ऑलराइट, अब इसके अंदर भी लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। ओके, सिंस वेक्टर A2 इज इक्वल टू 5 - 3 लैम्डा I - 2J + 5 - लैम्डा K, तो इसमें डाल दीजिए लैम्डा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 × 2, यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं, + 5 - 2K। ओके, अब इस पोर्शन को भी मिटा दिया जाए, इसका काम अभी फिलहाल ख़त्म है। ओके, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये -I हो जाएगा, -2J + 3K। सो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चेक करें इन दोनों का सम A है या नहीं। 6I - I + 5I कहाँ गया, J यहाँ है ही नहीं, तो -2J आएगा, अब 2K + 3K 5K, तो सम तो A आ गया। अब क्या A1 B के पैरेलल है, तो इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3I + K, उसकी जगह B लिख देंगे, दैट इज A1 इज लैम्डा टाइम्स B, तो पैरेलल भी हो गया। और A2 क्या B के परपेंडिकुलर था, वही गाना गाइए, A1 B1 + A2 B2, B2 0 है, + A3 B। -1 × 3 -3, -2 × 0 गायब हो गया, 3 × 1 + तो 0 आ रहा है। तो आपने खुद ही अपना आंसर चेक कर लिया। तो फाइनल आंसर आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं फिर ना, वेक्टर A इज इक्वल टू 6I + 2K, ये रहा ना A1 + A2। So this is a extremely important question. Don't forget, there are 3 questions like this in the NCERT book. Okay, so we do one more extremely important question in this class and then I'll wind off. Alright, so I'm rubbing it off. Let's do the last question for this class. And it's also extremely important question. Question number 16. आपको दिए गए हैं 2 यूनिट वेक्टर्स। तो वेक्टर A है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये क्वेश्चन में दिया है। वेक्टर B है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। थीटा इनके बीच का एंगल है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात। यू हैव टू प्रूव sin थीटा इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A minus B. So let me read the question for you. If A and B are 2 unit vectors and theta is the angle between them, then prove that sin theta is, no, not sin theta, it is sin theta by 2. Then prove that sin theta by 2 is equal to half of magnitude of vector A minus B. तो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको बोला है A एक यूनिट वेक्टर है, तो ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है A इज ए यूनिट वेक्टर, B इज ए यूनिट वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है और ये हमें प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2, और इसको हाफ थीटा भी लिख सकते हैं, इज दिस। अब यू नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट,
इसकी जो ओपनिंग लाइन है ना वो आपको एक तरीके से याद रखनी पड़ेगी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ है ना, क्लास के अंदर प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप इसको एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू आपको, क्योंकि इसकी ओपनिंग लाइन थोड़ी टिपिकल है। पता है क्या है इसकी ओपनिंग लाइन? इसीलिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा टफ हो जाता है। आपको ना इसको ऐसे लिखना है, सो दिस मे नॉट स्ट्राइक यू नो। और ये कौन सी फेमस लाइन है? वो बहुत ही फेमस लाइन जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स ओके। तो यहाँ से ये शुरू करना है ना, ये गिवन में है ना किसी के LHS RHS में। आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा RHS में उसकी झलक दिख रही है, तो इसको पकड़ा, इसको स्क्वायर किया और इसको ऐसे लिखा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर की दुनिया में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वेक्टर की दुनिया में हमारे पास बेहतर ऑप्शंस हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फॉर्मूला है, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट, ये ऐसे ही रहेगा। ये तो आखिर तक ऐसे ही चलेगा। अब आपको पता है क्या लिखना है आपको, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। और इसमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ए माइनस बी तो ये ऐसे ही चलेगा, ये तो आखिर तक चलेगा। यहाँ पे है ना, ये 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख दूँ। ये रहा 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1 माइनस 2 1 1 कॉस थीटा। तो यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यूज डाली, इसको तो छेड़ना ही नहीं है आखिर तक। 1 + 1 2, ये वाले दो ऐड किए, 1 × 1 एंड देन इंटू 2, ये ऐसे हो गया। अब आप 2 कॉमन लेंगे। सी इट्स द ओपनिंग स्टेप विच इज चैलेंज, नॉट द स्टेप्स आफ्टर दैट। Okay, so what is magnitude of a minus b whole square? Magnitude of a minus b whole square can be written as square of the vector. Then you apply the formula a square plus b square plus 2a dot b. Square of the vector is equal to square of the magnitude. A dot b is magnitude a magnitude b cos theta. Magnitude of vector a 1 दिया है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 1 + 1 को 2 लिखा, 2 × 1 × 1 को 2 लिखा, 2 कॉमन लिया, 1 माइनस cos थीटा आ गया। ओके, मेरे को लग रहा है कि अब मैं थोड़ा ठीक लिख रहा हूँ। जितनी जितनी मैं क्लासेस लेता जाऊँगा, आई विल बी राइटिंग बेटर फॉर रिकॉर्ड। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? ये ना 11th का फॉर्मूला है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 × 2 4 होता है, उसको यहाँ ले आइए आप ऐसे, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब वही होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसके दोनों तरफ ना स्क्वायर रूट ले लीजिए, लेकिन प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, उसका भी एक रीज़न है। ओके, थीटा जो एंगल है ना बिटवीन वेक्टर्स, ये मैक्सिमम 180 तक जा सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 90 तक जा सकता है, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 90 इज ऑलवेज 1। तो साइन थीटा बाई 2 विल बी ए पॉजिटिव नंबर। और दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब इस पर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हट जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, और इसके स्क्वायर रूट में भी वो स्क्वायर का सिंबल हट जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 1/4 का 1/2 हो गया आपका प्रूफ। सो व्हाट यू हैव डन जस्ट नाउ इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4-5 questions are left that we'll do now in the next episode, that is episode number 14. So that will follow episode number 13, and that will finish the dot product of two vectors, and then we'll start with the cross product of two vectors. I hope you enjoyed the class. सारे बच्चों को इस क्लास में मज़ा आया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, कितना हिंदी कितना इंग्लिश, लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेंड बनाएंगे हम इसको। सो आई एम ट्राइंग टू डू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी नाउ। सो वी जस्ट फिनिश्ड प्रैक्टिस पेपर 2 के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस। तो हर टॉपिक पे आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में होगा। सो दिस विल बी कंप्लीट क्लास फॉर यू। आपकी थ्योरी हो रही है, आपको असाइनमेंट मिल रहा है, वो सारा का सारा असाइनमेंट ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व भी किया जा रहा है। इन असाइनमेंट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू such a lecture that you don't require anything else.
Okay, have a nice day. Bye for today. We'll see you soon in the next episode.